Hello students, today we'll continue the part of The Lost Child by Mulk Raj Anand, class 9th. So as we have read, the child was lost in the fair. He wanted many things in the fair and he didn't ask his parents to allow him to buy those things और उसको वो खरीद कर दे दें because he knew that his parents would definitely refuse that. But when he came near a roundabout, he found people were enjoying there. He also wanted to do the same, and boldly he requested his parents to allow him to have a ride in the swing. But as he turned, he found his parents were not there. He got panic stricken. He looked here and there for his parents, but they were not there. He was crying, "Mother, father, mother, father." He went here and there, but he was not able to find his parents. So the child was totally afraid. He was frightened where his parents had gone. And see what happens now. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. So the child ran to and fro. इधर उधर वो बच्चा दौड़ा in a rage of running because he was frightened. He wanted to look for his parents. So he was running here and there. For some times he kept on moving and running. He stood defeated. But after some time, when he didn't find his parents, he stood defeated. Mean क्या उसको उसके parents मिले नहीं तो वो बेचारा हार मान कर खड़ा हो गया. His cries suppressed into sobs because he was crying for his parents. But now because he had been crying for a long time, so he was not able to cry now. He was just started to sob. अब सुबकना शुरू कर दिया, रोया उसे जा नहीं रहा था. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. So at little distance, वहाँ जहाँ खड़ा था उससे कुछ दूरी पर उसने देखा green grass. He could see that there was green grass and he was able to see through his filmy eyes. Filmy mean क्या है? Unclear, धुंधली सी, क्योंकि वो रो रहा था बहुत देर से, तो रोते रोते उसकी आंखें बिल्कुल फिल्मी हो गई, धुंधली हो गई थी. He saw that man and woman were talking there. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. So he went there very carefully. He looked among the patches of bright yellow clothes. जो कपड़े जो लोग वहाँ थे, भीड़ थे, उनमें से उसने झांक कर देखा, but there was no sign of his parents there. He didn't find his father and his mother there in those people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. These people, these male and female, these people were talking without no reason, sake for laughing and talking. मीन बस बातें कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, हंस रहे थे. कोई रीज़न नहीं था उनके पास हंसने का, बस वैसे मौज मस्ती में हंस रहे थे. तो जैसे उस बच्चे ने देखा, he didn't find his parents there. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Then he started to run again. दोबारा फिर से उसने भागना शुरू किया. And at this time he went to a shrine. Shrine mean क्या होता है? Temple. तो to which people seemed to be crowding. He went to a temple where he saw a large number of people were gathering there. Every little inch of space here was congested with men. But he ran through people's legs, his little sob lingering mother father. लेकिन मीन क्या है? देखो, every little inch of space, ये क्या शो कर रहा है कि that the shrine was quite crowdy. Every little inch of space here was congested with men. मीन छोटी से छोटी जगह, हर इंच सारी जगह जो थी वो लोगों से भरी पड़ी थी. लेकिन फिर भी वो लोगों की पीपल्स लैग्स, उनकी टांगों में से, छोटा बच्चा था वो, टांगों में जैसे आपने मंदिर में देखा है धक्का मुक्की भी होती है, इधर उधर बड़ी मुश्किल से निकला जाता है. तो जो लोग वहाँ थे उनकी टांगों से के बीच में से दौड़ा. और अभी जो वो सुबक रहा था वो दूर हो गई, मतलब सुबकना उसने चालू रखा. मदर फादर, सुबकते सुबकते कह रहा मम्मी पापा, मदर फादर, मदर फादर. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक. अभी तो ये जो मंदिर था वहाँ, मंदिर क्या बाहर भीड़ थी, या आप ये कह सकते हो कि जो मंदिर का दरवाज़ा होता है जिसमें अंदर एंट्री की जाती है उससे बाहर का था. लेकिन नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल का जो एंट्रेंस था जिससे अंदर जाया जा रहा था, वहाँ भीड़ और भी ज़्यादा थिक हो गई, मतलब और ज़्यादा भीड़ होगी पहले की बजाय. मैन जोसड ईच अदर, द पीपल वर, जो जोसल मीन क्या होता है? धक्के मारना. द पीपल वर पुशिंग ईच अदर, एक दूसरे को धक्के मार रहे थे लोग. हैवी मैन, बड़े मतलब कुछ लोग तो काफ़ी हैवी थे, स्ट्रॉन्ग थे, विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज,
मर्डरस आइज का मीनिंग क्या है यहाँ पर? क्रूअल आइज। तो उनकी आंखों में बड़ा मतलब उनकी आंखों को देखकर बच्चा डर जाए। एंड हैफ्टी शोल्डर्स एंड दोज पीपल वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, दोज हु वर देयर इन द लाइन ऑफ द टेम्पल। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट। जो बेचारा बच्चा है वो उनके पैरों के बीच में से घुसने की, निकलने की कोशिश कर रहा है, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स। बट बिकॉज इट वॉज क्वाइट क्राउडी एट द टेम्पल, मैनी पीपल वर गैदर्ड देयर, इट वॉज क्वाइट कंजेस्टेड, सो ही वॉज नॉक्ड हेयर एंड देयर बाय द मूवमेंट्स ऑफ दोज पीपल। वो बेचारा उनके पैरों के बीच में से निकल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको लग रहा है कहीं उसके पेरेंट्स मंदिर में ना हो, लेकिन उस भीड़ में वो बेचारा इधर उधर धकेला जा रहा है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट। ट्रैम्पल्ड मीन क्या होता है? ट्रेड डाउन, पैरों से कुचला जाना। कि भीड़ इतनी थी, वो छोटा बच्चा था, इतनी भीड़ थी कि वो अंडर फुट, किसी के पैरों के नीचे भी कुचला जा सकता था, कि किसी को ये ना पता चले कि भाई कोई है कि नहीं है। भीड़ इतनी थी कि किसी को ये भी पता नहीं चलने वाला था। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। श्रिक्ड मीन क्या होता है? क्राई, चिल्लाना। कहते हैं कि अगर वो अपनी ऊंची से ऊंची आवाज़ में नहीं चिल्लाया होता, तो नहीं चिल्लाया होता मदर फादर, तो इट श्योर था कि वो किसी के पैर के नीचे कुचला जाना था। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। जो भीड़ थी उसमें एक व्यक्ति ने, एक मैन ने उसकी क्राई को सुना, उसकी रोने की आवाज़ को सुना। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म। स्टूपिंग मीन क्या होता है? बेंड होना। बड़ी मुश्किल से वो झुका और उस बच्चे को उसने अपनी बाजू में उठा लिया। अब देखिए, स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी क्यों कहा है? क्योंकि खड़े होने की जगह नहीं थी मंदिर के बाहर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ऐसे में अगर झुकना पड़ेगा तो स्पेस ज़्यादा चाहिए, और स्पेस वहाँ था नहीं। तो जैसे ही वो बच्चा मदर फादर करके चिल्लाया, तभी एक व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को सुना, वो नीचे की ओर मुड़ा और उस बच्चे को अपने बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड? हुज बेबी आर यू? द मैन आस्क्ड एज ही स्टेड क्लियर ऑफ द मास। तो जैसे ही वो आदमी उस बच्चे को भीड़ से बाहर लेकर आया, उसने बड़े प्यार से उससे पूछा, अरे बच्चे तुम यहाँ कैसे आए? किसके बच्चे हो तुम? मतलब तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम कहाँ कैसे यहाँ आए? द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। जो बच्चा था वो पहले से भी ज़्यादा और ज़्यादा ही स्टार्टेड टू क्राई लाउडली। पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। दैट ही जस्ट सैड ही वॉन्टेड हिज मदर, हिज फादर। और कुछ नहीं कहा। जैसे उस आदमी ने पूछा तो पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से रो रो कर कहने लगा, मुझे मेरे पेरेंट्स ही चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब जो ये व्यक्ति है, ये हर एक उस चीज़ के पास बच्चे को ले जाता है जो चीज़ें वो पहले चाहता था लेकिन उसको मिली नहीं। लेकिन अब क्या है, ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। पहले जैसे वो मिठाई वाले के पास जाता है, लेकिन अब मिठाई वाले के बाद सबसे बाद में जाएगा। तो जिसके पास सबसे बाद में गया था, अब जो ये व्यक्ति है उसको चुप करवाने के लिए उनके पास ले जाता है। तो देखो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। द पर्सन ट्राई टू सूद हिम, कंसोल करना, उसे शांत करने के लिए उस झूले के पास ले गया। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? एंड ही आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड लाइक टू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स। मतलब जो झूला है उसमें जो घोड़े बने हुए हैं उनकी सवारी करना चाहेगा। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। तो जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचा, वहां जाकर उसने बच्चे से पूछा, तुम घोड़े की सवारी करना चाहोगे? द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 श्रिल सॉब्स। जो बच्चा जो था वो जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगा। एंड ही ओनली शाउटेड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरे मम्मी पापा ही चाहिए। झूले के लिए भी उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। The men headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to a swing cobra. Next, the men took him to the place where the snake charmer was playing his flute and the cobra was swinging. जहाँ सांप का नाच चल रहा था, सांप जो मूवमेंट कर रहा था, वहाँ ले गया। Listen to that nice music, child. He pleaded. Pleaded mean request. तो उसने बच्चे से रिक्वेस्ट की कि ये प्यारा सा म्यूजिक सुनो। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain. I want my mother, I want my father. अब देखो, जो चीज़ है देखने की चीज़ है तो आंखें बंद कर लेगा, सुनने की चीज़ है तो कान बंद कर लेगा। ऐसा बच्चा रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे उस आदमी ने कहा इस मीठी सी प्यारे से म्यूज़िक को सुनो, तो बच्चे ने अपनी उंगलियों से अपने कानों को बंद कर लिया और दोबारा दुगनी आवाज़ में ज़ोर से चिल्लाया that he wanted his mother, his father. The man took him near the balloons. Next time, the kind man took him near the balloons,
thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. He thought that the color of the balloons are quite bright, and with the help of the balloons the child will be able to distract and deviate his mind and will keep quiet. Would you like a rainbow colored balloon? The man asked him if he would like to have a rainbow colored, mean रंग बिरंगे balloon लेना चाहोगे? He persuasively asked. Persuasively mean क्या होता है? In a way of compellingly, उसको मनाते हुए कहा कि भाई गुब्बारे जो हैं ये रेनबो कलर के गुब्बारे लेना चाहोगे? The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. तो जो फ्लाइंग बलून्स थे, उड़ते हुए जो पोल के साथ बंधे हुए गुब्बारे थे, बच्चे ने उनका अपना ध्यान वहाँ से हटाया और फिर से उसने सुबकना शुरू कर दिया कि मुझे मेरे मदर और फादर चाहिए. See, here this man is quietening the boy. Then the snake charmer you can see there, and here are the balloons. This is the swing and many things. तो जो man है उसको हर जगह ले जाता है. But again and again the child said that he want his mother and father. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. द पर्सन, अगर वो आदमी कुछ अच्छा नहीं होता तो वो उस बच्चे को छोड़ सकता था, लेकिन वो चाहता था कि बच्चा अपने पेरेंट्स से मिल जाए. ही वॉज अ काइंड मैन, ही वॉज अ जेनरस गुड पर्सन. तो अभी भी वो बच्चे को हैप्पी करने की कोशिश कर रहा था. तो ऐसा सोच कर वो उसे जो मेन गेट था वहाँ फ्लोर सेलर के पास ले गया, फ्लावर सेलर के पास. लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड? और उसे पूछा इफ़ ही वॉज एबल टू स्मेल दोज फ्लावर्स. अरे देखो उन फूलों की खुशबू आ रही तुम्हें. वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? और बड़े प्यार से पूछता है तुम अपने गले में एक माला पहनना चाहोगे? कि भी तुम्हें एक माला दिलाऊं, तुम गले में पहन लेना. द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट. जिस बास्केट में गुलमोहर के फूल रखे हुए थे, ही टर्न्ड हिज नोज अवे. जो स्मेल करना है वहाँ से अपना नाक को हटा देता है. एंड रीट्रेटेड हिज सॉब. रीट्रेटेड मीन क्या होता है? रिपीटेड. और अपना जो सोब है, सोबिंग करना है, धीरे धीरे जो रोना है उसको कंटिन्यू करता है. फिर कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. तो thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to counter of the sweet shop. ये सोच कर कि जो अगर वो व्यक्ति उसको गिफ्ट ऑफ स्वीट्स दे देगा, मिठाइयाँ दे देगा, तो उसको डिसकंसोल्ट कर पाएगा, मतलब उसका रोना बंद करवा देगा. तो वो व्यक्ति था जो उसे स्वीट शॉप के पास ले गया जहाँ मिठाइयाँ बेची जा रही थी. व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? ही आस्क्ड. तो पूछता है कि कौन सी मिठाई खाओगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ड. ही अगेन टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड जस्ट कीप ऑन सोबिंग, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. अगेन ही सेड दैट ही वॉन्टेड हिज मदर एंड फादर. तो जो चीज़ें पहले देखो आपको ध्यान होगा, द चाइल्ड वॉन्टेड टू हैव अ बर्फी बट ही डिडंट से टू हिज पेरेंट्स बिकॉज ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज. देन ही वॉन्टेड टू हैव अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. Again his parents refused. Then he wanted balloons, refusal. Snake charmer, refusal. He went to the roundabout, but before he could say anything to his parents, he didn't found them there. तो वो व्यक्ति जिसको बच्चा मिलता वो उसे हर एक ऐसी जगह पर ले जाता है जो वो सारी चीज़ें पहले चाहता था. तो earlier he wanted those things, but now when he was being offered those things, he was not likely to purchase or enjoy anything. Because this time he was away from his parents. So the moral of the story is that the real happiness of a child lies with his parents. तो finally the child just said that he wanted only his parents. नहीं तो वो एक बार के लिए कह भी सकता था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप मुझे दिला दीजिए. He could feel happy, but he knew that without his parents he was not safe. He can't survive with his parents. That's why he was crying again and again and just wanted his parents. Thank you. So you should also respect your parents and care them.